can eat healthy food. 5 अभी तक आंसर दे चुके हैं, छठवां भी ओके, ओनली 7 हैज आंसर्ड, एक तो दे ही नहीं पाया, और all 7 has given the right answer. Okay, because डिफरेंस मार्क्स का केवल होगा कि कौन फास्ट दिया, उसमें डिफरेंस आएगा. सो ह्यूमन बीइंग इज बेटर, नॉट बेटर देन मेक, इसलिए बेटर नहीं है कि वो बड़ा अच्छा आर्म्स बना सकता है, और इसलिए बेटर नहीं है कि वो बढ़िया बेड पर सो सकता है, और इसीलिए वो बेटर नहीं है कि अच्छा खाना खा सकता है. इसलिए वो बेटर है एनिमल से, उसको ईगरनेस होता है लाइफ के रियलिटी जानने के लिए. हु एम आई, वेयर आई हैव कम फ्रॉम, हु इज गॉड, व्हाट इज नेचर, वेयर विल बी आफ्टर डेथ, व्हाट इज डेथ. सो this all that is not found in the animals, only human can do that. So in that respect, so human beings are better than animals. So see the marks now. So Rahul is again still first, 2,127. Saurabh is second, Aditya third, Abhishek fourth, Rohit fifth. So this is a scoreboard up after 3 questions. So ready for next question. So question 4, death means soul leaves the present gross body, remains in heart, destroyed, with subtle body leaves the present gross body. This is 4 option. 3 ने आंसर कर दिया, 4 भी, केवल 6 सेकंड बच गए हैं. ओके, so all 8 have answered, 5 have given the right answer, 3 has chosen the first one. So this is partly true, this is not fully true. Leaves the present gross body, so leaves the present gross body with subtle body. And I said subtle body includes 3 elements, that is mind, intelligence and false ego, as described in the scriptures. As Gita says, in the 6th chapter, the body structure is the 5 gross element. What it says, Bhumi, Apo, Analo, Vayu. 5 gross element. Somebody, किसी का sound आ रहा है, उसको बंद कर दो, mute कर दो. Okay. So 5 gross element, Bhumi, Apo, Analo, Vayu, खाम मनो बुद्धि रिवचा. खाम मनो बुद्धि रिवचा, खाम मतलब फॉल्स ईगो, मन और बुद्धि, ये 3 मिलाकर ये सटल बॉडी है, और 5 जो है ग्रॉस एलिमेंट है जो ग्रॉस बॉडी का. तो भूमि, अपो, अनलो, वायु, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स है. तो जब डेथ मीन्स द ग्रॉस बॉडी रिमेन्स हियर, you are going after death, you are going to bury it or you are going to burn it. So the soul comes out with the subtle body, mind, intelligence and false ego. So mind and intelligence, false is the carrier of the soul. So that soul leaves this gross body. So this is the right answer. The D, 4th one is the right answer. And 5 have given the right answer. 3 has chosen first one, but it is a partly true. So see the score now. Rahul is remaining first, 2,751. Now Rohit has come second, 2,040. Saurabh third. Saurabh Dixit fourth. अभी चांस है, अभी कोई बहुत आगे पीछे जाएगा. So be focused and be quick. So next, question 5th. Soul cannot be cut into pieces by weapon, moistened by water, burnt by fire, all of the above. I think all can give the answer is this. And all can give the right answer. Okay, fine. All 8 have given the right answer.
But who has given the first, so that will get the more marks. Now, see, because that is all true, that because the Shastra Gita says, Nayanam Chidanti Sastrani, that is weapon. Nayanam Dahati Pavaka, burnt by fire. कोई fire उसको जलाना. न चयनम क्लेदयंतो अपी, अपी मतलब अपो मतलब वाटर, वाटर भी उसको मॉइस्चर नहीं कर सकता है. तो ऑल ऑफ द अबव. Next, you see the score. Now, Rahul is maintaining 3,584. Rohit is second, 2,900 something. Saurabh, 2,400. Saurabh Kesari fourth. Aditya 5. Somnath, hurry up. Your name is not coming. Your name is not coming in 5 list. Okay? Yes, sir. Try. Be focus. जितना फोकस जो रहेगा उसको क्विक आंसर दे सकता है, राइट आंसर दे सकता है. तो सी नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट. ट्रू और फॉल्स. दिस यू कैन गिव वेरी फास्ट. नेचर ऑफ सोल इज टू सर्व. ट्रू और फॉल्स? Yeah, true. 7 have given the right answer, 1 has given the wrong answer. Automatic nature of soul is to serve. चाहे तुम अपने देश की सेवा करो, या घर की सेवा करो, या बच्चे की सेवा करो, या कुत्ते की सेवा करो, या गॉड की सेवा करो. It is inherent nature of the soul to serve. So whether you are doing the right serving or wrong serving, that depends your बुद्धि कैसी है. And what you have got the knowledge for that. So this 7 has given the right answer, 1 have wrong. See the score now. So Rahul is maintaining first, 4,400. Rohit second, 3,800. Aditya has come third position now, changing. Saurabh third था, अभी fourth हो गया. Saurabh Dikshit फोर्थ, सौरभ केसरी फिफ्थ. चेंजिंग है, दिखाता एरो दिखा रहा है कि आदित्य ऊपर उठ रहा है. आदित्य तो बी कॉम्पिटिटिव नाउ. या सो यू हैव बिकम थर्ड नाउ. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, बी रेडी. 7th question. God is option most powerful, most beautiful, most opulent and knowledgeable. All of them. Still, 7 has given the right answer, 1 has given the wrong. First he has given. Why you are limiting the God? Most powerful, okay? But he is also most beautiful. He is most opulent and knowledgeable. No one better knowledgeable than him. So it is all of them. All correct. All 3 is okay. So 1 has given the wrong, other 7 has given the right answer. So now see the scoreboard. So Aditya is making, Rahul has made a first, maintaining his first position, 5,300. Rohit is second, 4,600, and Aditya 4,200 something. So very close. Saurabh 4,252, Aditya 4,292, and Saurabh Kesari is also 4,212. Okay, so the 3 is very close. Aditya, Saurabh Dikshit, Saurabh Kesari. That may change. Okay, so be focused. Now next question. Question 8. True or false? Science believes on reality and dharma or religion is based on faith. True or false? So only right answer I have got. How it can be true? Because you see this is scientist opinion that they have said. Science itself believe on the faith. The first step of science is the faith. You cannot go without faith in any research and this. You are believing this is okay, then you are moving.
So this saying that science believes on reality and dharma or religion is based on faith, that is a wrong answer. So this is false. So only one has given. अभी बहुत change हो जाएगा और score में change हो जाएगा. You see the scoreboard now. Aditya, I think you have only answered right one. So that's why you have come to now second position. 5,200, much difference now. So now Rohit has come on the third, 4,600. Saurabh and Saurabh Dikshit, Saurabh Kesari, very close to each other. So, in fact, you say this is a religion is not a belief, but it is a very scientific than any material science, because it is coming from the true source, and it is coming directly from the God. The Gita says, Bhagwan Vacha. So God had directly told that. So it is the right from the right person, right knowledge you have got. So this is the true science basically. So coming to the next. Ninth question, which one is not come into category of 4 common defects in human beings? Cheating propensity, helping tendency, get illusion, imperfect senses. Common defects in human beings. जो नहीं आता है, चारों कैटेगरी में नहीं आता है. You can focus not come in category. So only 3 have given the right answer. 2 have given that cheating. So that is it is a common defect of any human beings. कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत cheating सब में होता है. किसी में extreme होता है, किसी में very minor, small amount. और get illusion, भ्रमित होना, भ्रम में हो जाना, ये सबका common है. और हमारे senses, इंद्रियां जो है imperfect है, imperfect senses. So these 3 are the common defects, but helping tendency is not a defect. So it is a good thing that of human beings. It is not defect. So only you find, I think nobody has given right answer. Some given a cheating propensity. How you can say it is not a defect in human beings? And 3 is saying that you get illusion answer. So nobody has given. We wrongly interpreted the question, sir. Actually, we wrongly interpreted the question. Actually, helping tendency is a positive thing, no? It is not a defect. It is not a common defect in human beings. Yes, sir. वो question का interpretation गलत दिमाग में आ गया था. Which one is not come into category of 4 common defects in human beings? Yes, sir. 4 common. इसलिए थोड़ा समझने में टाइम लग गया होगा. So थोड़ा जल्दी में होकर आंसर दे दिया होगा इसको. तो कोई क्वेश्चन अगर थोड़ा टाइम लगता है, गेट टाइम, बट रॉन्ग आंसर से तो पूरा 0 हो गया. सर वो लगता है थोड़ा टाइम ले रहा है वो आंसर, वो सबमिट होने में. तो होने में सर वो शायद वो आंसर सबमिट हुआ नहीं. अच्छा, नहीं सबमिट तो सबका हो गया. जैसे 3 to 5 7 एक का नहीं हुआ था किसी का, और 7 लोगों का तो आंसर आया है. ओके, तो नेक्स्ट. So Aditya is very close now to the Rahul. 5,300 is Rahul. Aditya is 5,200 something. So this now come to the next question. Question 10. Remembrance, knowledge, and forgetfulness comes from our own hard work, a study of books, God.
connection loss. Yeah, it's okay. So so this answer you find दो लोगों ने प्रॉपर आंसर दिया है, remembrance, knowledge and forgetfulness. So God says in the Gita, matah smriti jnanam apohanam cha. Matah smriti मतलब remembrance, jnanam knowledge, apohanam मतलब forgetfulness, that comes from matah smriti, मेरे द्वारा ही आता है. किसी को बहुत जल्दी याद हो जाता है, कोई भूल जाता है, और ज्ञान किसी को तुरंत हो जाता है. So that comes from God. It is not my hard work और मैं बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ लूंगा. कितने लोग पढ़ते रह जाते हैं, तुरंत भूल जाते हैं, और अपना एक्सपीरियंस it doesn't matter. So it comes from God. So two have given the right answer. He has chosen the last one, experience. Experience तो बहुत हो गया कि लास्ट में बूढ़े हो जाते हैं तो सब भूलने लगते हैं. So it comes from God. It is chapter 15.15 sloka. Mata smriti jnanam apohanam cha. Next, you see the scoreboard now. Aditya has gone first. 6,100. Hello, Aditya, you are moving up. Rahul, fight. Rahul, fight. We have still around 18 question, 19 question. Rohit is third. Saurabh Dikshit fourth. Saurabh Kesari fifth. Okay. So next question. 11th question. Soul is of full knowledge, eternal, full of bliss, all of them. आठों लोगों ने आंसर दिया, 6 लोगों ने राइट आंसर दिया, 2 लोगों ने चूज किया इटर्नल. इटर्नल तो है ही. सोल हैव द फुलनेस बिकॉज इट इज सत चित आनंद. गॉड इज सच्चिदानंद. So we are the part and parcel of the God. So we have the also Sat Chit Anand. Sat means eternal. Chit means knowledge. Anand means bliss. So we all three, eternal, full knowledge, full of bliss. All of them is the right answer. So 6 have given the right answer. 2 has chosen the partly answer. It is not selected all. So see the scoreboard now. Aditya 7,000, बहुत लीड लिया. सोमनाथ आ गया ऊपर. सोमनाथ एकदम नीचे से जंप मार दिया. सोमनाथ, यस सर. कहां से एकदम जंप मार दिया? हाँ सर. थर्ड में आ गए. किसको पीछे कर दिया उसमें से? रोहित सर. रोहित सर. लास्ट तक कौन आता है देखते हैं. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. You see next now. 12वां क्वेश्चन. Which one is incorrect? Incorrect. From Lord everything comes out. God is present everywhere. God is not aware of our thinking and feeling. God takes the love from offerings. 5 लोगों ने आंसर दिया. 5 सेकंड बच गया. 3 सेकंड, 2 सेकंड, लास्ट. 8 लोगों ने आंसर दिया, लेकिन राइट आंसर 3 लोगों ने दिया. तो पहले 2 लोगों ने आंसर दिया फ्रॉम लॉर्ड एवरीथिंग कम्स आउट. इट इज करेक्ट है. इनकरेक्ट कैसे है? अहम सर्वस्य प्रभवा. इसे अहम सर्वस्य प्रभवा, मेरे से ही सब कुछ आता है. एंड God is present. This is omnipresent. God is present everywhere. तो इसको कोई आंसर नहीं किया है. ओके, इट इज करेक्ट.
God takes the love from offering. ये तो right things. जब हम ऑफर करते हैं तो भगवान उससे प्रेम को ले लेते हैं. हम जितने प्रेम से भगवान के लिए भोग बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे, उतना ही वो भोग जो है प्रसाद टेस्टी हो जाता है. तो बनाने वाले का प्रेम को ग्रहण कर लेते हैं भगवान. So that God takes the love from offering. So that is not incorrect. So God is not aware of our thinking. God knows because He is present as the Paramatma in our heart, along with the soul. So He knows everything. Whatever we are thinking, feeling. So this aware that we are not alone. और वो आदमी कभी डरता नहीं है कि वो फील करता है कि God is with me. And I am the obedient son of God. So He will protect me in all circumstances. So निर्भय हो जाता है. So that is, God is not aware of our thinking and feeling. This is incorrect. So that third, 3 has given the right answer. Now see the scoreboard. Change now. Okay, jumping Saurabh Dikshit. थर्ड आ गया. सौरभ दीक्षित जंप किया, थर्ड आ गया. आदित्य इज मेंटेनिंग फर्स्ट नाउ. राहुल इज सेकंड. सौरभ दीक्षित थर्ड पर आ गया. सोमनाथ फोर्थ और सौरभ केसरी फिफ्थ. ओके, so now come to the next question. Question 13. When you go deep in science, you feel the randomness, existence of supreme designer, power of science, ability of human beings. You feel the, if you go deep in the science. So 7 have given the right answer. You feel the existence of supreme designer. If you go take as a metal microscope, if you go the atomic microscope, you see the how the atoms arrangement. You see the copper metal. If you go in the deep in the atomic arrangements, you find the FCC arrangement of copper. Okay. So similarly, if you go deep in the anything, you go the nature, you find how the beautiful arrangement. You see the cosmos. So how beautiful designer it is, supreme designer. No human beings can do like this. So this is the existence of supreme designer if you go deep in the science. So real scientist believes in God, the so-called scientists that challenge the God. So you feel that. So this one has given that if you go in deep inside, you feel the ability of human beings. What is that ability? We cannot structure the atom, arrange the atom in a particular fashion. We are melting the metal, we are pouring in the mold, the atoms arranged like in a particular fashion. And different atoms, different metal has a different arrangements. That is one thing you are finding. So now you see the scoreboard. Okay, coming first, Rohit now come. Rohit जो पीछे हट गया था, जो सेकंड में पहले था, वो आउट हो गया था 5 से, अभी वो 5th पर आ गया है. सौरभ केसरी अभी 5 से नीचे चला गया. तो आदित्य अभी मेंटेन कर रहा है 8,700, राहुल 7,800, सौरभ दीक्षित 3rd, सोमनाथ 4th, and Rohit has come in the 5th category. So this now come to the next question. 14वां question. Why Arjuna initially decided to not fight in Kurukshetra? He lost his interest in fighting. He became compassionate to Bhishma, Drona and other kinsmen. He was fearing that he may be defeated by the strong army of Kaurava. He was not knowing the strength of Krishna. Okay. So 4 have given the right answer. He became compassionate to Bhishma, Drona and other kinsmen. वो किसी को मारना नहीं चाहता था, अपने गुरु को मारना, अपने भीष्म जिसके गोद में खेला था बचपन में, वो उनके खिलाफ अब धनुष उठाने को तैयार नहीं था.
जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनको मारने को तैयार नहीं था वो। और ऐसा नहीं है कि पहला कि ही लॉस्ट हिज इंटरेस्ट इन फाइटिंग, क्षत्रिय वो फाइटिंग तो इससे उसका हॉबी है। एंड ही वाज फियरिंग दैट ही मे बी डिफीटेड बाय अ स्ट्रांग आर्मी और कौरव, ऐसे अर्जुना इज द सो पावरफुल, ही कैन नॉट फियर अबाउट दैट। और वो कृष्णा को स्ट्रेंथ भी नहीं जानता था, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि उसने कृष्णा को खुद चूज किया था। आई वांट टू, आप मेरे साथ रहे, आपकी पूरी सेना कौरवों के साथ रहे। He has himself selected. He was knowing the strength of Krishna. So only thing is that he become compassionate to Bhishma, and that is how he become compassionate, because the Krishna has taken the chariot to the middle of the battlefield and also in front of the Bhishma and Drona. And by seeing them, he becomes so compassionate that I should not fight now. So this is the right answer. So you see the scoreboard now. Aditya is maintaining now 9,400, Rahul 8,400, Saurabh Dikshit 6,700, Somnath 4,500 and Rohit 5,900. So यहाँ अभी कंपटीशन है 6,700, 6,500. अभी भी आगे ऊपर हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब चेंज हो सकता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, हु वाज द गुरु और टीचर ऑफ अर्जुना? वेरी सिंपल क्वेश्चन। कृपाचार्य, विदुर, द्रोणाचार्य, परशुराम? आई थिंक ऑल शुड गिव द राइट आंसर। Okay, all have given the right answer. Dronacharya, no doubt. Dronacharya, the guru of Kauravas, Pandavas, दोनों के गुरु थे, जो उनको धर्मशास्त्र भी सिखाए और धनुर्विद्या उनको सिखाया सब। तो द्रोणाचार्य was the guru of Arjuna, teacher or guru of Arjuna. So this is right. So now see the changes here. Okay, so it is maintaining Aditya first, Rahul second, Saurabh third, Somnath fourth and Rohit fifth. The next question, 16th question. Arjuna was a Kshatriya and he should fight for what? To expand his kingdom, to show his strength and military power, to becoming more rich and rich, or protecting the religion? Okay, 7 have given the right answer. 1 has given the answer that to show his strength and military power. This is not a fighting a क्षत्रिय कि अपना दिखाने के लिए फाइट नहीं करता है, वो फाइट करता है धर्म की रक्षा। क्षत्रिय का मतलब होता है छाता, अम्ब्रेला की तरह, कि अम्ब्रेला जैसे होता है कि हमको धूप से वर्षा से बचाता है, तो उसी तरह से क्षत्रिय मीन्स वो किसी पुअर को कोई अगर उसको हरास कर रहा है उसको वहां बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कोई बहुत वीक है उसको कोई दबा रहा है तो वहां क्षत्रिय खड़ा हो जाता है। सो दिस इज द नेचर ऑफ क्षत्रिय। ऐसा नहीं है कि ये धन के लिए जमीन के लिए वो लड़ाई कर रहा है वो क्षत्रिय है वो तो असुर है। क्षत्रिय मीन्स सो प्रोटेक्टिंग द रिलीजन, धर्म के लिए वो युद्ध कर। इसमें से पहले एक श्लोक था, अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परम धर्म है, लेकिन उससे भी बड़ा धर्म होता है कि धर्म के लिए फाइट करना। अहिंसा परम धर्म फर्स्ट स्टेज है कि हम किसी को अननेसेसरली मारे नहीं, लेकिन जो धर्म विरुद्ध काम कर रहा है, समाज में अनैतिक फैला रहा है, वैसे लोगों को मारना क्षत्रिय की ड्यूटी है, पनिशमेंट देना उसको। सो दिस इज द right answer. I'll see the scoreboard now. Changes. Prashant has come. Okay. रोहित पीछे चला गया, प्रशांत ऊपर आ गया 5th पोजीशन में, और ये चेंजेज आ रहा है अभी। लेकिन आदित्य 11,000, राहुल 9,000, सौरभ 8,400, सोमनाथ 8,200,
प्रशांत 6900। अभी चेंजेज आ सकता है। प्रशांत मूव कर रहे हो, अच्छा है, गुड। कम सर सर एक मिनट रुकिएगा, अभी क्वेश्चन मत रिलीज किए, मेरा वेब गड़बड़ा गया है। ओके 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 ओके। कहाँ चला गया? ठीक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट। हाँ सर ठीक है। Okay, so come to the next one. So next is 17th question. Abhimanyu was the son of Draupadi, Kunti, Subhadra, Kripi. Very simple question. Abhimanyu was the son of Draupadi, Kunti, Subhadra, Kripi. So 4 I have given the right answer, Subhadra. सुभद्रा का एक ही पुत्र था, अभिमन्यु। अभिमन्यु के पुत्र थे परीक्षित, सुभद्रा के गर्भ में थे। अभिमन्यु को कुरुक्षेत्र में सब कौरवों का सब जो महारथी से सब मिलकर एक साथ मारा था, बहुत अनैतिक रूप से मारा था। और वो जो चक्रव्यूह जो रचा गया था, उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अर्जुन जानते थे, चाहे अभिमन्यु जानते थे। अभिमन्यु भी कैसे जाने थे कि जब अभिमन्यु अभिमन्यु जब सुभद्रा के गर्भ में थे, तो अर्जुन ने सुभद्रा को ड्यूरिंग दैट टाइम सुभद्रा को एक टीचिंग्स दिया था कि चक्रव्यूह को तोड़ना कैसे होता है। लेकिन उसी पीरियड में सुभद्रा को थोड़ा नींद आ गई थी, तो चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकलना है वो नहीं सुन पाई थी। तो इसलिए अभिमन्यु वो भूल गए। चक्रव्यूह तोड़ते हुए तो अंदर पहुंच गया, लेकिन अब कैसे बाहर नहीं निकलना है उससे, वो नहीं जान पाया था। सो हमारा फर्स्ट टीचिंग स्टार्ट्स इन द वुम्ब ऑफ द मदर, जो आजकल पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। कोई माता वैसी नहीं है। तो ये इसीलिए जो हमारा अच्छा जनरेशन डेवलप नहीं हो पा रहा है। So this was the first teaching. So see the scoreboard now. और ये कौन कौन थे? द्रौपदी तो पांडव की पत्नी थी, कुंती तो पांडव की माता थी, और कृपी जो थी वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी और कृपाचार्य की बहन थी। तो सुभद्रा ही वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा ये बहन थी भगवान कृष्ण की, और जिसका शादी अर्जुन से हुआ था और जिसका पुत्र अभिमन्यु हुआ। ओके, सो नेक्स्ट सी द स्कोर बोर्ड नाउ। चेंजिंग, वाह बहुत चेंज हो रहा है। सोमनाथ 3rd पर आ गया, सौरभ केसरी 5th पर, प्रशांत पीछे चला गया, और आदित्य अभी 12,000 पहुंच गया। कंपटीशन बहुत गैप बढ़ते जा रहा है। 9,000 12,000। राहुल फाइट, राइट एंड क्विक आंसर देना होगा। सोमनाथ 3rd पर आ गया। सोमनाथ अभी 2nd पर भी जा सकता है। 9,100, 9,800 राहुल। सौरभ दीक्षित पहले बहुत ऊपर था, 4th पर पहुंच गया। सौरभ केसरी नीचे 5th से नीचे चला गया था, अभी 5th पर आ गया है। प्रशांत को नीचे कर दिया। नेक्स्ट 18वां क्वेश्चन। हाउ मेनी श्लोकाज आर इन श्रीमद् भागवत गीता? 500, 600, 700, 800। ये तो लगता है बहुत कम लोग आंसर दे पाएगा। देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं जो थोड़ा बहुत भी भगवत गीता सुना होगा। वेरी गुड, 6 हैव गिवन द राइट आंसर। एक लोगों ने बोला 600, एक और ने बोला 800। नहीं, भगवत गीता है 700 श्लोकाज, 18 चैप्टर, 18 चैप्टर्स, 700 श्लोकाज। सो दिस इज भगवत गीता। एंड 18 दिन कुरुक्षेत्र का युद्ध चला था। तो राइट आंसर 6 लोगों ने दिया है, 700 श्लोकाज। सो सी द स्कोर बोर्ड। चेंजिंग। सौरभ केसरी ऊपर आ गया, 4th पर। सौरभ दीक्षित 5th पर,
एंड 12,000 आदित्य, राहुल कुमार बड़ा है 10,000, 2,000 का डिफरेंस है। सोमनाथ भी 10,000 थर्ड पर, सौरभ केसरी फोर्थ पर अभी आ गया, सौरभ दीक्षित फिफ्थ पर। Okay, so next question, 19th question. Who is firmly fixed in perfect knowledge? He always eager to learn more and more. He is not affected by good or evil he obtained. He become happy with good and lament in distress. He reads more transcendental literatures. इसका आंसर बहुत कम लोग दे पाएगा। Let us see. मैंने बोला सही, 3 लोगों ने आंसर किया, एक को तो लगता है कि टाइम आउट हो गया, आंसर नहीं दे पाया। 4 लोगों ने आंसर दिया, ही ऑलवेज ईगर टू लर्न मोर एंड मोर। सर्वर से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? कैसे? पता नहीं, आंसर रिकॉर्ड नहीं हुआ है, गलत से रिकॉर्ड चला गया। कैसे? पता नहीं, टाइम अप लिख दिया यहाँ पे, आंसर किए फिर भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो नहीं, टाइम अप हो गया होगा, उस सेकंड में तुम्हारा देते देते वो निकल गया होगा, इसीलिए उसमें आता है 20, 19, 18, 17 ऐसे गिनते जाता है, तो क्विक दे देना होगा। नहीं, वो कर रहे थे ना, फिर भी टाइम चलते रह गया और रिकॉर्ड नहीं किया आंसर। अच्छा, तो तुम्हारा सर्वर थोड़ा डाउन होगा देने में तब उसको। ये जो है पहला आंसर 4 लोगों ने दिया, वो कैसे दे सकता है? वो कैसे फॉर्म परफेक्ट नॉलेज और फॉर्मली फिक्स, मतलब विचलित नहीं होता है, जो हमेशा ईगर रहेगा जानने के लिए, तो हमेशा बेचैन रहेगा, वो फिक्स कैसे होगा? He is not affected by good or evil he obtained. उसको गलत, अच्छा, सुख दुख जो भी मिले उसे अफेक्ट नहीं होता है, तो वही परफेक्ट नॉलेज में है। वो हर समय भगवान की कृपा मानकर चलता है। किसी को अगर उसको कष्ट भी होता है तो ही फील दैट मैं तो बहुत पापी था, मुझे इतना ही कष्ट मिला, ये भगवान की कृपा है। और बहुत कुछ मिल भी गया तो बोलेगा कि मैं उस लायक नहीं था कि मुझे इतना मिल गया, ये भगवान की कृपा है। तो हर समय ऐसा नहीं है कि उसको करोड़ों का लॉटरी मिल गया तो पागल हो जाएगा, वो भी फिक्स करेगा कि भगवान की मर्जी है, दिया है, भगवान की सेवा में जाएगा। और कुछ नहीं भी रहेगा तभी बोलेगा कि इट्स गॉड्स, हमको इतना मर्जी चाह रहे हैं कि मैं इस स्थिति में रहूं तो मैं रह रहा हूं। So he is fixed, वो हमेशा हैप्पी रहेगा। तो ए, that is the second one, he is not affected by good or evil he obtained. धीर, उसको धीर बोलते हैं, गीता में बोलते हैं धीर, धीर पुरुष। तो थर्ड, इसमें बहुत चेंज आ जाएगा। लेट अस सी स्कोर बोर्ड के पांचों वही पोजीशन तो वही है। आदित्य 13,000, राहुल 11,000, सोमनाथ 10,000। राहुल का स्कोर बोर्ड बढ़ गया, 11,000 हुआ, सोमनाथ 10,000, सौरभ 8,500, सौरभ दीक्षित 8,400। आदित्य ने 10 करेक्ट आंसर इन ए रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन, which one is not the nature of soul? Which one is not the nature of soul? Eternal, destructible, knowledge, pleasure, आनंद। नेचर ऑफ सोल, एक पहले ऐसा क्वेश्चन हुआ है उसमें थोड़ा डिफरेंट कर था, इसमें गलत टच हो गया सर, गलत टच हो गया है सर, गलत टच हो गया सर, टच किसी और को किया, टच खराब कोई और हो गया सर। मेरा आंसर रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। क्यों? पता हो रहा है? नहीं हुआ, बाकी सब का हो रहा है। पता नहीं सर, अभी तो डिस्ट्रिक्ट में किया, कब से किए जा रहा है, नहीं रहा है। तुम फिर से इसको कर करो, और क्या? नेटवर्क हाई स्पीड का चाहिए, तो रिफ्रेश करे। लेकिन तुम्हारे लिए तो गेम से फिर गेम पिन तो है, फिर तो लोड कर देख सकते हो। रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है सर। तो पिछला मार्क्स और ये वाला मार्क्स ऐड हो जाएगा, फिर से ज्वाइन करना। कहाँ से होगा?
थोड़ा रिफ्रेश कर लो या फिर थोड़ा सा नेटवर्क को ठीक कर लो, ये इसमें थोड़ा सा हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए। रिफ्रेश भी नहीं हो रहा। रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो उसको तब कर दोगे तो फिर तो नए ढंग से तुम्हारा हो जाएगा ना। वही तो दिक्कत हो रहा है। ओके, जस्ट सी क्वेश्चन देखो, तब उसमें नेटवर्क में तो बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है। सो नाउ सी द 5 लोगों ने सही आंसर दिया। ए सोल का नेचर, नॉट द नेचर, डिस्ट्रक्टिबल नेचर नहीं है। सोल का नेचर है सच्चिदानंद, इटर्नल नॉलेज, प्लेजर, डिस्ट्रक्टिबल नॉट द नेचर। तभी भी 2 लोगों ने आंसर दे दिया कि नॉलेज उसका नेचर है, वो तो सोल का आनंद खोजना, आनंद, इसीलिए सब लोग आनंद के पीछे पागल हैं, क्योंकि दिस इज द इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ सोल। बट सच में डी की वजह ई वाला सच हो गया सर, सॉरी डी वाला नीचे वाला मेरा है सर। अच्छा, तुम्हारा हो गया था। ओ, तो सॉफ्टवेयर अब कुछ लेगा नहीं उसमें तो। स्कोर बोर्ड नाउ इसीलिए चेंज हो गया। अभी सौरभ केसरी में चल रहा है। सौरभ दीक्षित ऊपर आ गया, सौरभ केसरी नीचे चला गया। सोमनाथ 11,000, राहुल 12,000, आदित्य 13,000। अभी भी बहुत चेंज हो सकता है, 11, 12, 13,000 इसमें चेंज होगा। सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन। Religion means to strengthen knowledge, to make a group and enlarge that group, to know the truth, to get knowledge for material development. What is the real means of religion? ये तो सबको दे देना चाहिए आंसर। Yeah, only 4 have given the right answer. एक ने आंसर किया कि रिलीजन का मीन्स टू स्ट्रेंथन नॉलेज। रिलीजन का मीन्स केवल नहीं है कि नॉलेज बढ़ाना अपना खाली। और दूसरा ने 2 लोगों ने आंसर दे दिया कि टू गेट नॉलेज फॉर मटेरियल डेवलपमेंट। रिलीजन का पर्पस नहीं है, मटेरियल डेवलपमेंट के लिए नॉलेज ये तो भौतिक विज्ञान है। एंड रियल नॉलेज का टू नो द ट्रूथ, हर चीज का ट्रूथ जानना कि भौतिक संसार क्या है, ये नेचर क्या है, मैं कौन हूँ, गॉड कौन है, मेरा रिलेशन क्या है, what will happen after death, where we will go after death. So this is knowing the truth is the meaning of religion. So this 4 have given the right answer, 3 have given the wrong answer, and एक तो आंसर नहीं दे पाया। So see the scoreboard now, change होगा बहुत। S सौरभ दीक्षित का मार्क्स बढ़ गया, काफी अंतर हो गया सौरभ केसरी से। तो 10,000 सौरभ दीक्षित, 12,000 सोमनाथ, 12,200 राहुल, 12,900 आदित्य, 14,500। So next question, 22वां क्वेश्चन। Why Bhagavad Gita is accepted beyond religion? It is sacred book of Hindu. It discusses the true identity and duty. It pleases to all. It can be understood by all. सोच समझ कर आंसर देना। ओके, 7 has given the right answer, एक आंसर ही नहीं दे पाया। सो गीता बियॉन्ड रिलीजन एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसा नहीं कि वो हिंदू का सेक्रेट, हिंदू वर्ड ही नहीं है कहीं गीता में। दिस इज नॉट ए हिंदू बुक। और ऐसा नहीं है कि ये प्लीज करने के लिए गीता है किसी को। इट गिव्स द राइट ट्रूथ, गिव्स द हार्ड ट्रूथ ऑफ द इट्स ह्यूमन बीइंग्स। और इट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल, ऐसा नहीं है। इट इज गुह्यम, परम गुह्यम, भगवान खुद बोलते हैं परम गुह्यम। मतलब गुह्यम मतलब सेक्रेट नॉलेज है, और भी परम सेक्रेट नॉलेज है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय दोज हु आर प्योर। तो प्यूरिटी होगा उतना ही गीता को समझ पाएगा। मटेरियल नॉलेज
बहुत बड़ा फिलोसफर साइंटिस्ट है, he cannot understand the Gita. He is by heart, he is very pure, he can understand the Gita. So it cannot be understood by all. So it discusses the true identity and duty. ये आइडेंटिटी हमारा बताता है कि मैं हूं कौन, और व्हाट इज माय ड्यूटी, कर्म है, करना। बोलते हैं गीता कर्म करना सिखाता है, और कर्म का परिभाषा भी बतलाता है कि व्हाट इज कर्मा एंड व्हाट इज माय ड्यूटी। सो दिस गीता टीचेज अस। सो यू हैव 7 have given the right answer। अब उसमें भी टाइम कितना लिया है उस पर डिपेंड करेगा। लेट अस सी स्कोर बोर्ड। 5 मेंटेन किए हुए हैं। आदित्य 15,000 पहुंच गया, राहुल 13,000, सोमनाथ 12,000, सौरभ 10,000, सौरभ केसरी 9,000। ओके, अब क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। 23वां क्वेश्चन, all the living beings are part and parcel of, very simple question, Lord Shiva, Brahma, nature, God। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, सबको राइट आंसर होना चाहिए। अब मैं बहुत बार बोलते भी गया, अरे इतने बार बोला भी हूं, तभी भी 3 लोगों ने गलत आंसर दिया। एक तो लगता है कुछ। Sir, actually, sir, I have done Brahma, sir, because there is a sir slok that is Aham Brahmasmi. That's why, sir, I'm sir given the answer Brahma. Brahmasmi means Brahma नहीं बोलता है। Aham Brahmasmi means Brahm means the that is a spirit. Brahm word is the spirit. Brahma is the person who has created this universe by the mercy of the God, by the blessing of the God. Brahma has created this material universe, so it is a Brahma. Brahma means soul, that is all Brahm है, सब ब्रह्म है, सब सोल है, सबके पास सब सोल ही है बेसिकली। अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म, आप भी ब्रह्म, लेकिन एक परम ब्रह्म है और जिसको गॉड बोलते हैं। ब्रह्मा इज ऑल्सो एज एक ब्रह्म है, वो भी जीव तत्व हैं। डिस्क्राइब करता है शास्त्रों में कि 3 तत्व हैं। एक इज द सुपर एनर्जी, एक इज द मिडिल एनर्जी, एक इज द लोअर एनर्जी। सो वी आर द लोअर कैटेगरी में है। मिडिल कैटेगरी में ब्रह्मा शिव आते हैं, एंड हायर कैटेगरी में लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा। उसका डिटेल अभी आएगा, बट यू नो फर्स्ट, सो all we discussing with the shastras, not by मेरा मन ऐसे करता है वैसे होता है, वैसे नहीं हो सकता। So what is the praman? That is sab praman that shows authentic shastras, so that is there. So God, we are the part and parcel of God. Lord Shiva, Brahma, nature, no. So God says मई अध्यक्ष है ना प्रकृति, प्रकृति तो मेरी अध्यक्षता में काम करती है। और ब्रह्मा सेज कि ब्रह्मा तो ध्यान लगाया, जब पूरी तरह से जलमग्न था कमल के ऊपर, ब्रह्मा स्वयं की तरह प्रकट हुए, तो ध्यान लगाए, तो भगवान ने उनको आदेश दिया तप करो। जब तप किए तो उनको सारे नॉलेज मिला, क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं मत स्मृति ज्ञानम अपो, उनको इस यूनिवर्स के क्रिएट करने का ज्ञान मिला। तो इट इज ब्रह्मा इज ए जीव तत्व। सो नाउ सी द स्कोर बोर्ड। और चेंज आदित्य 16,400, राहुल 13,700, सोमनाथ 12,900, सौरभ दीक्षित 10,900, सौरभ केसरी 10,000। सौरभ केसरी, सौरभ दीक्षित का मंत्र है, बहुत चेंज हो सकता है अभी। सर 24वां क्वेश्चन, सर एक्सीलेंट सर, we cannot do now. Start हो चुका है, you have to answer this. Which way we are not more or less same as God? Quantity wise, face wise, quality wise, possession wise. More or less same as God.
दो लोगों ने सही आंसर दिया। क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी में हम तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। और पोसेशन वाइज देते हैं कि पोसेशन वाइज हमारे पास क्या है, भगवान तो अनंत है, हम उनके साथ बराबर कैसे हो सकते हैं। फेस वाइज वेयर वी आर, कृष्णा मीन्स ऑल अट्रैक्टिव, तो सबको आकर्षित करने वाले, हमारा फेस वैसा कहाँ हो सकता है। तो फेस वाइज वी आर नॉट क्लोजर टू हिम। सर एक सेकंड सर, मैं बात बोलूं सर। मेरा एक्चुअली सर मेरा काहूत वाला सॉफ्टवेयर से चला गया सर, फिर से सर मैं कैसे से ज्वाइन करूं? तो फिर से ज्वाइन करोगे तो तुम्हारा रिफ्रेश करने में गेम पिन मांग रहा है। गेम पिन तो गेम पिन तो दिया हुआ है, स्क्रीन पर आ रहा है ना नीचे में, राइट हैंड बटन। अच्छा सर, अब स्टार्टिंग से गेम स्टार्ट से हो जाएगा अब। 94666189। नहीं, अभी तो क्वेश्चन वही आएगा स्क्रीन पर जो अब यहाँ चलेगा। सर एक्चुअली सर मेरा सर 0 हो गया मेरा पॉइंट। हाँ तो 0 हो ही जाएगा क्योंकि गेम से तुम आउट हो गए। अभी खाली तुम्हारा वही स्कोर दिखाई देगा। तब अभी वाला पॉइंट क्लिक करके रख लो, फिर बाद में तुम ऐड कर लेना उसको। हाँ, अभी नोट करते जाना, देखो ऐड करना तब देखेंगे कितना आता है। सो दिस क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी ओके। तब स्कोर बोर्ड देखते हैं। आदित्य 16,000, राहुल 14,000, सोमनाथ 12,000, सौरभ दीक्षित 10,000 एंड सौरभ दीक्षित, सौरभ केसरी। रोहित इज बैक इन द गेम। सर मेरा सर पॉइंट सर आप लिख लीजिएगा सर वैसे सर, क्योंकि सर मेरा नया पॉइंट मेरा भी ऐड होगा ना। ओके अच्छा, तो इसमें अच्छा अभी तो तुम्हारा 12,912 है ना? जी सर, 12,912 है। लेट अस सी ये कितना होता है। बारह 12,912 तुम्हारा है अभी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन। ट्रू रिलीजन टीचेज to strengthen the group, to destroy other religion. There is no anti-God, love to God and respect to all living beings. 7 लोगों ने सही आंसर दिया है, एक ने गलत आंसर कर दिया। टू डिस्ट्रॉय अदर रिलीजन कैसे सिखा सकता है कि दूसरे के रिलीजन को तोड़ दो। नो, सो 7 लोगों ने सही आंसर दिया। हड़बड़ी में आंसर वैसा आ जाता है। तो 25वां क्वेश्चन, अब इसका स्कोर बोर्ड देखो। आदित्य 17,000, राहुल 15,000। राहुल एक समय तुम फर्स्ट में था, सेकंड बनाए हुए हो। आदित्य शुरू में 5 में भी नहीं था, लेकिन जंप करते करते फर्स्ट गया है। सोमनाथ तब स्कोर बोर्ड तो उतना ही अभी रहेगा, दिखाई देगा। सौरभ दीक्षित 11,800, सौरभ केसरी 10,853। So next, 26वां क्वेश्चन। हाउ मेनी मिलियन स्पीसीज द सोल पासेस? कितने मिलियन ऑफ स्पीसीज से पास करता है, कितने लाख जोनियों से? 80, 84, 88, 92। 84 लाख जोनी से पास करते हैं। हम लोग सुने आ रहे हैं, वर्णन भी है शास्त्रों में कि द सोल पासेस फ्रॉम 84 मिलियन स्पीसीज। जलजा 9 लक्षानी, जल में 9 लाख योनियों से होते हुए वो पास करता है। कृमियों रुद्र सांख्य एक,
रेंगने वाले सांप वगैरह से 11 लाख, पक्षिणा 10 लक्षणम, 10 लाख पक्षियों की वेराइटी, और अस्थावर लंक्ष विशति 20 लाख पेड़ पौधों की वेराइटी, और त्रिमिल लक्षानी पासवा 30 लाख पशुओं की वेराइटी, चतुर्लक्षानी मानुष 4 लाख मनुष्यों की वेराइटी, इसे जोड़कर हो जाता है 84 लाख। तो 84 लाख जोनियों से पास करते करते सोल पास करता है। तो 3 हैज गिवन द राइट आंसर, 3 हैज चूजन द 80, एक ने 92 लाख बोल दिया। ओके, सो नाउ सी द नेक्स्ट स्कोर बोर्ड। रोहित ऊपर उठ गया है, सौरभ केसरी को पीछे कर दिया। सो आदित्य 17, राहुल 15,800, सोमनाथ 12,009, सौरभ 12,700, रोहित 11,700। तो राहुल अभी आगे बढ़ रहा है 15,800। 27वां क्वेश्चन, गुड पर्सनालिटी मीन्स, बिकॉज दिस इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, becoming healthy, knows himself and love and care others, dictate others, more knowledgeable and having pride. 7 have given the right answer, एक ने बोल दिया कि dictate others। गुड पर्सनालिटी का मतलब नहीं होता है डिक्टेट अदर्स, वो तो एरोगेंस होता है, केवल डिक्टेट अदर्स। सो गुड पर्सनालिटी मीन्स ही नोज हिमसेल्फ एंड लव एंड केयर अदर्स, so that is a good personality means. So now see the scoreboard. वाह, सौरभ दीक्षित जंप कर गया। सर मेरा ऐड भी होगा सर, मेरा उधर से ऐड भी होगा। हाँ, तुम्हारा ऐड पहले का इसमें है, 12,912 ही दिखा रहा है। तो आदित्य 18,000, राहुल 16,000, लेकिन अब तुम्हारा कितना स्कोर हो रहा है वो तो लास्ट में आ जाएगा, जब रिपोर्ट देखेंगे तब आएगा। तो सौरभ 13,000, सोमनाथ 12,000, रोहित 12,400। सो अभी अब क्लोजर आ रहे हैं एंड का गेम में, क्योंकि अब 28वां क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन बचा है। सटल बॉडी इज नॉट कंस्टिट्यूटेड विथ दिस एलिमेंट, सटल बॉडी, हैप्पीनेस, इंटेलिजेंस, माइंड, फॉल्स ईगो। सूक्ष्म शरीर किससे नहीं बना हुआ है? 3 चीज तो है सूक्ष्म बॉडी का, एक उसमें से नहीं है। कौन है? हैप्पीनेस, राइट आंसर। तो हमने अभी बताया था कि मन, बुद्धि और अहंकार से मिलकर सूक्ष्म शरीर बना है, जो गीता में 6 चैप्टर में बताते हैं। ग्रॉस बॉडी, भूमिर अपो अनलो आयु, सूक्ष्म बॉडी खाम मनो बुद्धि रीवच। अहंकार, अहंकार मतलब फॉल्स ईगो। अहंकार इतिहाम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, 8 चीजों से बना हुआ ये शरीर है। 5 ग्रॉस एलिमेंट, 3 सटल एलिमेंट्स। So next scoreboard you see changes. Now 18,000, 16,000, 13,000, Somnath. Okay. So now come to the 29वां क्वेश्चन, फिश विल बी हैप्पी। मछली कहाँ खुश रह सकती है? ऑन कॉजी बेड, बाय वेयरिंग गुड क्लॉथ्स, इन वाटर, बाय सीइंग मूवी इन ड्राइंग हॉल। सबने आंसर दिया। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। उसको बढ़िया बेड पर सुला देगो तो मर जाएगी, उसको खूब बढ़िया कपड़ा पहनाओ, मछली को मैं घुमाने ले जा रहा हूँ, मर जाएगी। और उसको ले जाओ कि नहीं अब तुमको मैं मूवी दिखा रहा हूँ ड्राइंग हॉल में बैठा कर सोफे पर, मछली बेचारी मर जाएगी। इसे लेसन मिलता है। सो दैट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन लेसन मछली से। सो सी द स्कोर बोर्ड नाउ। आदित्य, अच्छा रोहित ऊपर उठा क्योंकि सोमनाथ का स्कोर ऐड नहीं हो रहा है। तो आदित्य 19,000, राहुल 17,000, सौरभ 14, रोहित 13। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रेडी।
सोल विल बी हैप्पी। कैसे हैप्पी हो सकता है? इन मटेरियल वर्ल्ड, इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इन अ स्काई, इन वाटर, इन अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्योंकि सोल इज अ स्पिरिचुअल, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही हैप्पी रह सकता है। सोल इज नॉट मटेरियल, तो मटेरियल वर्ल्ड में हैप्पी कैसे रह सकता है? इसीलिए इसको, इस मटेरियल वर्ल्ड को गीता में भगवान बोलते हैं दुखालयम आश्वस्तम। इसको दुखालय बोलते हैं। दुखों का घर, जैसे हिमालय में हिम ही है, उसको हिमालय बोलते हैं। और एक विद्यालय मतलब जहां विद्या का घर है, विद्यालय बोलते हैं। इसको दुखालय। सो दिस वर्ल्ड इज दुखालय। सो इट इज ए प्रिजन हाउस ऑफ द लॉर्ड। हम लोग बड़े दुष्ट आत्मा हैं जो भगवान से बगावत कर करके मैं भी भगवान ही बनूंगा, मैं आपके अधीन क्यों रहूंगा, मैं आपको सर्विस क्यों करूंगा, मैं भी मालिक बनूंगा, मेरे भी नौकर गाड़ी बनूं। एंड वी वांट टू बी हैप्पी बट नोबडी इज हैप्पी। कोई खाना चाहता है लेकिन वो खा नहीं पाता है, कोई सोना चाहता है वो सो नहीं पाता है। That is the situation. So this is last question. So we are the spirit soul. When you leave the body, if you go to the spiritual world in association with God, so you will be happy. So this now see the scoreboard, final scoreboard. Podium it is coming. 15,371. सौरभ दीक्षित थर्ड पोजीशन, राहुल कुमार सेकंड पोजीशन 18,391, आदित्य कुमार 20,021। आदित्य ने 23 क्वेश्चन का आंसर सही दिया। राहुल ने तो 24 क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन आदित्य थोड़ा तेजी में आंसर दिया। और सौरभ दीक्षित 18 क्वेश्चन का आंसर दिया। सर मेरा देख लीजिए। अभी आता है स्कोर बोर्ड, मैं लाता हूँ। ये तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का पोजीशन हुआ, पोडियम में कौन बन गया? आदित्य फर्स्ट, राहुल सेकंड, सौरभ दीक्षित हैज बिकम थर्ड। तो सी नाउ द ब्यूटीफुल रिपोर्ट देखते हैं। व्यू रिपोर्ट है, सबका रिपोर्ट क्या है? समरी देता है कि 43% करेक्ट। अभी प्लेयर्स में कैसे है स्कोर? आदित्य 20,000 77% करेक्ट आंसर। राहुल 80% आंसर करेक्ट किया, अभी भी सेकंड गया क्योंकि उसने 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था, अनआंसर्ड 2 क्वेश्चन। सौरभ दीक्षित 60% मार्क्स बट थर्ड पोजीशन। रोहित 60%, सौरभ केसरी 53%, सोमनाथ 53%। इसमें दे रहा है कि 7 का आंसर नहीं किया, 12,912 ही दिखाई दे रहा है। बाद वाला आएगा अभी। अभिषेक, प्रशांत, फिर सोमनाथ ने किया है। सोमनाथ का फिर वाला का है 3,541। तो अगर इसमें 3,541 ऐड कर दो तो बताओ कितना हुआ? 16,453 सर। 16,453. So means you have become third. Okay. Yes sir. You have become third. Aditya first, Rahul second, Somnath third, Saurabh Dixit fourth. और प्रशांत को चला गया था। प्रशांत 8 तक रहा था, 15 क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया था, तो 33%। अभिषेक 53, सौरभ केसरी 53, रोहित 60। This is a scoreboard. Okay.
तो इसमें देता है कि जो लोअर में है, एक्चुअली सोमनाथ तो नीचे में नहीं जाएगा। प्रशांत का भी लगता है कि उसका नेटवर्क फेल हो गया था ना, प्रशांत का भी नेटवर्क के प्रॉब्लम के चलते हुआ और डिड नॉट फिनिश। So correct, पहला का 45%, 64 like this। डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन कौन थे जो लगा? सोल इज फर्स्ट, सेकेंड वन में है, और जो कम आंसर दिया इसमें। ओके, so this is okay, so that fine? How you like that? Good, sir. Okay, Aditya, good. So now when the next quiz will be held, so be attentive। जिसको थोड़ा किस नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो वो तो कुछ अपना कर नहीं सकते हैं, लेकिन we try to make after 4-5 classes you will have a quiz like this। So quiz is a learning process and able to give the answer quick and fast and right answer, so that will be good। So Aditya, Rahul, Somnath heard like this, so next be more competitive in that। Okay, so maybe Saturday the class will be at 11:30. Okay, okay sir, yeah, Thank you, sir. yeah, thank you very much। Thank you, sir. Okay. कल भेजे थे क्या राहुल जी? क्या? तो भेजे थे किसको? हमको नहीं तो। फोटो कोई क्वेश्चन टाइप? एक मिनट देख लेते हैं, ऐसा तो कुछ याद नहीं है हमको, देख लेते हैं। नहीं, अरे अरे ये आपको भेज दिए हैं ना, बताइए। और हम किसी और को बोल रहे हैं कि अभी तक देख के बता कहीं नहीं रहे। किसको भेजे थे? अरे किसी को एमडी का नोट्स चाहिए था। अच्छा, हम कहें कि आपको कोई डाउट नहीं, करते सोचे फोन कर रहे हैं, लेकिन सर आपको लेट देंगे थे। वही हम कहें। चलिए कल बात। चलिए ठीक है। ठीक है, क्लास में आता हूँ।